مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رمضان آیا 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 رمضان آیا. میرا نام محمد سرفراز بن ذوالفقار علی اتاری ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے. الحمدللہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں. محمد طلحہ اتاری جامعۃ المدینہ پینسرا فیضان مدینہ سے. میں گجرانوالہ سے آیا ہوں 1 ماہ کا اعتکاف کے لیے. کہاں سے آئے آپ؟ کراچی سے آیا ہوں. میں ملتان سے. پنجاب کالونی کلفٹن. کراچی. ماشاءاللہ یہاں پہ ڈیلی بیس پہ نگران شورا بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی اہم موضوع لے کر تشریف لاتے ہیں فجر کے بعد، اور لوگوں کو بہت اچھی انداز میں جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں. بہت اچھے بیانات ان کے چل رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ روزانہ باقاعدگی سے نگران شورا حاجی عمران اتاری ان کا بیان ہوتا ہے. اتنا پر تاثیر، اتنا پر صلاحیت، اتنے پر وقار شخصیت کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ تاثیر کے تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. کس قدر انہوں نے حیا کے متعلق آج بیان کیا تو الحمدللہ عزوجل پکی نیت بن گئی. الحمدللہ عزوجل اپنے نگاہ کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد الحمدللہ عزوجل پیر و مرشد امیر السنت کی آمد بھی، ان کی زیارت کا بھی سلسلہ جاری رہا. انہوں نے کچھ مدنی پھول بھی عنایت فرمائے وضو کے متعلق کہ وضو کس طرح کیا جائے، اور وضو کی سنتیں بیان فرمائی کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور وضو کے دوران ہر وضو کو دھوتے ہوئے یا قادر پڑھے گے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے اغوا کی بھی حفاظت ہوگی. بابا جانی کا جب دیدار کرتے ہیں تو دل کو ایسے جیسے ٹھنڈک پہنچتی ہے. ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے. بابا جانی کی باتیں، بابا جانی کا مسکرانا، ہر چیز جو نا دل کو سکون دیتی ہے. پہلے تو گھومنے پھرنے میں رمضان میں جاتے تھے، ابھی تو فرسٹ ٹائم اعتکاف میں بیٹھے ماشاء اللہ سے. تو یہاں پہ بہت ساری دین کے بارے میں باتیں سیکھنے کو ملی. صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ، اور نماز صحیح طریقے سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ یہاں پہ 1 ماہ کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے. سوز ملتا ہے، رونے کو ملتا ہے. جب ہم روئیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تو سب کچھ ہی ملے گا. مرشد کے در پہ آیا، مرشد کا دیدار ہوتا ہے. الحمدللہ بہت بار جو ہے نا سعادت مل چکی ہے، بہت پاس بیٹھنے کی بھی. جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. میں جب پہلی بار آیا تھا نا تب سے لے کے اب تک 2 سال جب اتکاف نہیں ہوا تھا تو میں رمضان میں بہت روتا تھا، اور مجھے غم رمضان کا تحفہ جو ہے نا مجھے یہاں سے ملا ہے. اب غم مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ حسرت بھی پوری کر دے. اگر دیکھا جائے تو زندگی یہیں کی ہے. باہر جائیں گے تو وہی فساد، افراتفری، یعنی کہ فساد والی زندگی ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہمیں یہیں مرشد کے دامن سے جو ہے نا اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے. پہلے بھی رمضان ایسے گزارتے تھے؟ پہلے روڈ پہ تفریحاں کرتے تھے، روزے بھی کبھی کبھی رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، تراویح بھی نہیں پڑھتے تھے. ادھر تو ماشاءاللہ باپا کا لاکھ لاکھ احسان ہے. روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، بیان باپا کے سن رہے ہیں. مدینہ مدینہ. نماز پہلے نہیں صحیح پڑھ پاتے تھے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. جو احکام ہے ان کے طریقے سے ادا کر رہے صحیح ہے. اور تکبیراً پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ابھی ادھر بہت کچھ سیکھے ہم. امیر علیہ سنت کی محبت میں ہم یہاں پہ تشریف لے آئے. یہاں الحمدللہ پورا مدینہ مدینہ ماحول ہے. نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض اور غسل وغیرہ ہر چیز الحمدللہ سیکھی، سنت آداب سیکھ رہے ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں، میرے دل میں یہ چینجنگ آیا. میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، پھر میں نے ابھی نیت کیا کہ میں 1 مٹھی برابر رکھوں گا اور امامہ شریف باندھوں گا. وہ بھی خریدا ہوں اور سحری سے اسٹارٹ کروں گا باندھنا. فیضان مدینہ اس کا نام ہے. یہاں پہ آنے سے مدینہ کا فیضان ملتا ہے اور ایک ہی الگ فیلنگ ہوتی ہے. یعنی بندہ چینجنگ لاتا ہے جب آنے کے بعد یہاں پہ اپنی کچھ بننے کو دل کرتا ہے، یعنی کہ مبلغ، عالم دین. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے جذبات کا اظہار کیا ہمارے معتکفین نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब भी मस्जिद में दाखिल होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल में नियत करना शर्त है। मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की, तो ये नियत जब भी होगी, और ये हो गई नियत, सवाब भी शुरू हो गया, जबकि रज़ा इलाही के लिए की हो। और अब ज़बान से कह लेना कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की, ये ज़्यादा बेहतर है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हुआ पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इर्तिकाफ की नियत हो। बगैर नियत इर्तिकाफ नहीं खा सकते। अगर नहीं की थी, इफ्तारी सामने आ गई, इफ्तार नहीं कर सकते, हाँ इर्तिकाफ की नियत कर लीजिए, अब कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इर्तिकाफ की नियत सवाब के लिए करेंगे तो सवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। खाना पीना अलबत्ता जायज़ हो जाएगा। इसका मुनासिब तरीक़ा यह है कि इर्तिकाफ की नियत करें अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसके बाद ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले इफ्तार करें, खाएं पिएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से आज की रमज़ान शरीफ की 14वीं रात 1443 हिजरी की निस्बत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 14। बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। हवाला मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 1 पेज नंबर 407 हदीस नंबर 1664। वो सलामत रहा क़यामत में, पढ़ लिए जिसने दिल से चार सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवाल कीजिए, सवाल का जवाब भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, तो बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाये करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद आरिफ अत्तारी हैदराबाद सिंध, मेरी आपसे अर्ज़ी है, मेरा सवाल ये है, अगर कोई बहन या भाई या रिश्तेदार हम पर ज़िंदगी में एहसान करे या हमारी मदद करे तो फितरी तौर पर दिल उसकी तरफ झुकता है और उससे मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, मगर दूसरे बहन भाई रिश्तेदार कहते हैं कि इससे तो वही अच्छा लगता है, तो ऐसा कहना कैसा? इरशाद फरमा दीजिए, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह। दुआओं की अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुर्शिद कामिल को सेहत दे, खुशियाँ दे, आसानियाँ अता फरमाए, बार बार मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना दिखाए। आमीन। वैयाकुम। ये है फितरी तौर पे कोई एहसान करेगा तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी, तोहफा देगा तो मोहब्बत बढ़ेगी। हम दूसरों के साथ ऐसा अंदाज ना हो कि उसको ये लगे कि ये हमको घास नहीं डालता, किसी ने पैसे दिए तो बस उसके पीछे घूमता है। तो इसलिए हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। किसी को ये पता ना चले कि किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यहाँ तक कि बच्चों को भी अगर चूमे तो दोनों को बारी बारी चूमे, एक को चूमता रहेगा, दूसरे छोटे से बच्चे के छोटे से दिल पर भी इसका असर होगा। तो बाज़ औक़ात वो असर रोने की सूरत में एहतिजाज भी वो करता है बच्चा। एक को गोद में लेंगे आप तो दूसरा थोड़ा मतलब बाज़ औक़ात नाराज़गी का इजहार भी करता है, उसको भी ले लें। इसी तरह रिश्तेदारों में
یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ یہ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے ہو سکتا ہے اس سے حسد کسی کو ہو جائے، اور یوں بھی حسد ہونا بھی ظاہر ہے ایک اچھا کام تو نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ زبان سے بھی بول دیں کہ تم لوگوں نے میرا تو کوئی ساتھ نہیں دیا، اس نے میرا ساتھ دیا، تو پھر کہ ایک کام سے پھر فساد کی بنیاد آپ نے ڈالی، اس لیے وہ محتاط رہیں گے تو کوئی ناراض آپ سے نہیں ہوگا، نہ کوئی کہے گا کہ اس کے پیچھے گھومتا ہے۔ وہ گجراتی کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی، یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، کسی پر اظہار نہ کیا جائے کہ اس سے مجھے زیادہ محبت ہے اور اس سے کم ہے۔ خاندان میں اسی طرح آپ جو میں کہتا ہوں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں الیاس قاضی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزگار کے لیے کوئی وظیفہ ہو جو آپ مجھے بتا سکیں؟ یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر 11 بار درود شریف بعد نماز عشاء، قبلہ روبہ وضو ننگے سر، ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، ننگے سر پڑھنا ہے اور کھلے آسمان تلے۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھے جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ ایک اچھا وظیفہ ہے روزگار کے لیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ امیر اہل سنت، آپ سے عرض یہ ہے کہ اسلامی بہن سوال پوچھ رہی ہیں کہ تراویح میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس میں بھی سجدہ سہو ہوگا؟ جی ہاں، اگر بھول سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ دوبارہ رکعتیں ادا کرنی ہوں گی۔ ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ والی چیزیں کیا فروخت کر سکتے ہیں؟ قانونی جرم ہے، اور اگر وہ نقصان کرتی ہے، ایسی ایکسپائرڈ دوائیں اور جو بیچتے ہیں، بعض اوقات جان کے بھی خطرے ہو جاتے ہوں گے، زہر پھیل جاتا ہوگا، وہ تو ظاہر کہ پھر بڑا گناہ ہو جائے گا، پھر تو ہلاکت اور بڑھے گی نا اس کی۔ ورنہ ایکسپائرڈ چیزیں جس پر لکھا ہوتا ہے ایکسپائر ڈیٹ، تو یہ چھاپا جب پڑتا ہے تو پھر لے جاتے ہیں، بیچنی نہیں چاہیے۔ یہ تو تاریخیں بدل دیتے ہوں گے، یہاں تو چور کی 14 نظریں، ایکسپائر ہونے نہیں دیتے ہوں گے اس کو، تو یہ بھی جرم ہے، دھوکہ ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ کھانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں تو کیا یہ بیچ سکتے ہیں ایکسپائر ڈیٹ والی؟ یہ بھی نہیں بیچ سکتے، یہ بھی اس کا ٹیسٹ چینج ہوگا، اس کا فوائد چینج ہو گئے اور نقصان بڑھے گا اس کا۔ ایکسپائر ہو گئی، خلاص ہو گئی، اب وہ کا جو مقام ہے وہاں پہنچا دیا جائے اس کو۔ ہاں، اگر ایکسپائر ڈیٹ غلط لکھی ہوئی ہے، چیز بالکل پرفیکٹ ہے اور 100% درست ہے، اس کا استعمال کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر پچھلے سال صدقہ فطر نہیں دیا تھا تو کیا اس سال 2 صدقہ فطر دیں گے؟ اس سال اور اس سال سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ساری زندگی اس کا وقت ہے، جتنا جلدی ہو سکے دینا ہوگا۔ اس سال تو اب جیسے رمضان میں نہیں دیا تو اب آئندہ رمضان میں دے گا، نہیں، عید کے دن دے، بعد میں دے، جتنا جلدی ممکن ہو دے، واجب ادا کرے اپنا جس پر واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر جاب پر لگا جا سکتا ہے؟ دھوکہ ہے، گناہ گار ہوگا۔ میری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا شجر کاری کرنا سنت ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کھجور کے درخت اپنے مبارک ہاتھوں سے سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہاں لگائے تھے، 99 درخت لگائے تھے، اس کو برکت بھی دی اور اس میں جو بھی بہاریں تھیں وہ اپنی جگہ پر
उस मुबारक बाग की पहले तो ज़ियारत होती थी, मैंने वो ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह 1 से ज़्यादा बार की है। और फिर वो 2 दरख्त की जगह बाकी थी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब थे कि यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए थे अपने मुबारक हाथों से। उसमें से तबर्रुकन वो जड़ें जो थीं वो भी नज़र आ रही थी, तो इसमें लोग जड़ें भी ले जाते थे थोड़ा थोड़ा। और ये मतलब अब वो बाग अब उसकी ज़ियारत नहीं हो सकती, अब उस वहाँ इमारत और कुछ मतलब हिसाब किताब ऐसा हो गया है। तो फ़ज़ाओं की ज़ियारत अब भी हो सकती है कि भाई यहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुबारक बाग था। अब वो कितना हिस्सा इमारत बनी, कितने हिस्से में कोई खेती या कुछ हो रही है, ये मुझे ध्यान नहीं है। आपने ज़ियारत तो की होगी, अब क्या सूरत हाल है? देखिए बाग मुबारक की तो ज़ियारत की थी मैंने उन दिनों, 1 से ज़्यादा बार ज़ियारत की है। वो जगह कि यहाँ बाग था और वो मकाम 2 ऐसे मुझे याद पड़ते हैं, वो मकाम थे कि जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथों से वो दरख्त लगाए थे, तो उससे तबर्रुकन जड़ मुबारक और निकालना और खाक मुबारक लेना। मदीना शरीफ में ये मदीना शरीफ के मज़ाफ़ात में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। أنا محمد علي الجيلاني من السودان. يا سيدي الشيخ أسأل، قال لأحد الأصدقاء أنا عصيت الله، فقال لا مشكلة إن الله غفور رحيم، فهل يغفر الله لي وما حكم ذلك في ديننا؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. इसमें यानी कि एक से गुनाह हो गया, उसने दोस्त से अपना नदामत का इजहार किया कि मेरे से गुनाह हो गया। अब वो अगर ऐसा खौफजदा है गुनाह से, अव्वल तो इजहार करना नहीं चाहिए गुनाह का। अब उसने खौफजदा कि मेरे से गुनाह हो गया, यार क्या होगा, तो फंस गया, मुझे अजाब होगा। अब वो तसल्ली देता है अगर इस तरह कि नहीं आप घबराएं नहीं, तौबा करें, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, आप तौबा करें। अगर इस तरह वो नेकी की दावत देता है, अम्र बिल मारूफ करता है, तब तो ये सब आपका काम कर रहा है। तो अब अगर बेबाकी इसमें अगर है किसी में गुनाह, अरे गुनाह हो गया तो क्या हो गया यार, ऐसे गुनाह तो हम भी रोज करते हैं, पता भी नहीं है, जो सबका होगा अपना होगा। अगर इस तरह की भी बात बेबाक गुफ्तगू करें तो कोई ताज्जुब नहीं है, तो मतलब इसमें तो बड़े ख़तरात हैं कि अल्लाह की नाफरमानी कोई हल्का जान रहा है, बहुत है ना ख़तरनाक है ये बातें। तो दोनों सूरतें मैंने बयान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि रोज़ा दिन ही में क्यों रखा जाता है, रात में क्यों नहीं रख सकते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अल्लाह पाक का हुक्म। अगर अल्लाह पाक हमें रात का रोज़ा इरशाद फरमाता तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम रात के रोज़े रखते। तो इसमें हिकमतें मालूम नहीं की जाती। अल्लाह पाक ने 5 नमाजें क्यों फ़र्ज की, 4 करता ना करता उनकी, तो नऊज़ु बिल्लाह ये यहाँ चूँ चाँ कुछ भी नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक मैंने हाजिर हूँ, लब्बैक हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो तू हुक्म फरमाए मैं हाजिर हूँ। यहाँ कुछ भी बोलने का नहीं है, इस तरह के वसवसे पालने भी नहीं, हर बात की हिकमतें नहीं पूछी जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसे आपने भी फरमाया कि यहाँ कुछ बोलने का नहीं है, और ये तो यूँ समझने कि हमारी आपस की जो आजकल गैदरिंग होती है, तो ये बस ये गुफ्तगू का एक हिस्सा बनती है, और हम इस पे आपस में कुछ बहस कर रहे होते हैं, कुछ मामलात एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, कोई दलाइल दे रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जिस पर हमको यूँ मतलब आपस में ये बहस नहीं करनी चाहिए? नहीं, दीन के मामले में खास कर, दुनिया के मामले में भी क्यों, अब मतलब बेतुकी बातें करना कि यार
अम्मी क्यों बोलते हैं, अम्मी को अब्बू बोलना चाहिए, अब्बू को अम्मी बोला करें, तो ठीक है बोलो, एक का चप्पल होगा एक का हाथ होगा, संभाल लेना फिर। तो ये हर बात की हिकमतें थोड़ी पूछी जाती हैं, न ऐसी बहस फजूल बहस की जाए, न अल्लाह का जिक्र करे, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, ज़िंदगी मुख्तसर है, वक्त से फ़ायदा उठाकर आखिरत की तैयारी करे फजूलियात में। फिर ये फजूलियात बाद औक़ात वो लड़ाइयात में तब्दील हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं इसमें, तो सही है मैं सही हूँ तो गलत कहता है, झूठ कहता है, ये वो मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, तो ऐसी बात करावा ही नहीं। खुट्टी बहसें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। दिल आज़ारियाँ भी इसमें होती हैं बाद औक़ात, और बहुत कुछ हो जाता है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम के पैगाम में ये सवाल अर्ज़ है कि लोग कहते हैं कि शरीफ के साथ शरीफ और बदमाश के साथ बदमाश, या फिर ये कहते हैं कि शरीफ बन के रहोगे इस ज़माने में तो लोग तुम्हें हल्का ले लेंगे, तो लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, लोग तुम्हें तकलीफ़ देंगे। तो इसका क्या मतलब कि शरीफ आदमी भी अभी बदमाश बन जाए? तो प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने सताया, पत्थर मारे, है ना, बहुत कुछ हुआ ना, तो क्या हुआ? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शरीफ व शरफ़ा हैं, शरीफों के भी शरीफ, शरीफों के सरदार हैं। क्या कोई ऐसी रिवायत मिलती है? पत्थर तो खाना साबित है, वही पत्थर उठाकर माअज़ल्लाह दे मारना साबित हो? कोई ऐसी रिवायत किसी ने पढ़ी? शराफत से ज़िंदगी गुजार कर हमें नमूना अता फरमा दिया, और अल्लाह पाक ने भी हुक्म दे दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, सैंपल। तो इसकी नकल करनी है। शराफत, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा शराफत, तो इसलिए हमें भी शरीफ बनना है। कहीं भी हमें ये नहीं कहा गया कि बदमाश के साथ बदमाश, शरीफ के साथ शरीफ। तो ऐसी फजूल बातें नौजवान बाज़ वक़्त कर रहे होते हैं, इल्म की कमी की वजह से। शराफत का ज़माना नहीं है, तो काहे का ज़माना है? लूट मार का ज़माना है। क्या लूट मार करो तो पुलिस वालों को देख कर करना ज़रा, वो ले जाएंगे तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो ये कि शराफत का ज़माना है, शरीफ बनकर दुनिया जी रही है, और शरीफों के सदक़े दुनिया सलामत है, ये भी बता दूँ आपको। और दुनिया कभी की उजड़ जाती, तबाह हो जाती। सारे के सारे अंबिया किराम शरीफ दुनिया में जिए, सारे के सारे सहाबा किराम शरीफ दुनिया में ये भी जिए, सब के सब औलिया किराम जो हुए वो भी शरीफ, जो हैं वो भी शरीफ, जो होंगे वो भी शरीफ। तो कोई बदमाश तो वली हो ही नहीं सकता ना, ना बदमाश कोई नेक आदमी हो सकता है। बदमाश बदमाश होता है जिससे लोग नफरत करते हैं। हाँ बोलो सलाम करते तो उससे शर के, उसके शर से बचने के लिए करते हैं कि ये कोई तकलीफ ना पहुंचाते, उसको सलूट मारते हैं उसको, दिल से कोई थोड़ी इनसे राजी होता है। तो ये बिल्कुल गलत मुहावरा है कि शरीफ के साथ शरीफ, बदमाश के साथ बदमाश। गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के शेर है, बदीरा बदी सहल बाशत जजा, अगर मर्दी अहसिन इला मन असा, कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है। अगर तू मर्द है तो बुराई का बदला भी अच्छाई से दे। पता चला कि मर्द वो जो शरीफ है, बदमाश शरीफ नहीं है। मर्द और औरत की कोई दरमियानी इसको लक़ब देना चाहिए। वो लक़ब क्या हो सकता है, ये फैसला बदमाशों ने करना है कि मुसलमान शरीफ होता है, बदमाश नहीं होता। मुसलमान की सिफत शराफत है, बदमाशी नहीं है, डकैतियाँ नहीं है, चोरियाँ नहीं है, दहशत गर्दियाँ नहीं है, बिला वजह मजलूमों पर जुल्म सितम करना नहीं है, रिश्वत खोरी नहीं है, मुसलमानों की इज़ार इसानी, ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। ये इसी तरह के लोगों का काम है कि जो अच्छे लोग नहीं होते। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा मुसलमान बना दे।
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ये मद्दी पुल सुनकर बहुत भला लगता है, अच्छा लगता है, मगर ये कि लोग अजीब वगैरह होता है ना भाई, ठीक है अभी इनको थोड़ी को आवाम इनको क्या पता कि यहाँ जीना कैसे होता है। ये अभी इनको खाली मस्जिद में नहीं है बस टीवी पे बैठ के जगह भी बोल लेते हैं, बाकी अब यहाँ को बुज़दिल बन के थोड़ी को अब हम जिएंगे। अभी ज़माना बदल गया है ना, अभी वो टाइम नहीं है जो ये समझते हैं, तो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो बुज़दिल बन के जिएंगे, डरपोक बन के जिएंगे, ठीक है शराफत अपनी जगह पर है, लेकिन डरपोक तो नहीं रहेंगे हम लोग। क्या कहते हैं आप? मेरी उम्र 70+ है जी, तो मैं शुरू से कोई मतलब इतना मेरी सूरत चढ़ा हुआ नहीं था। शुरू में मैं भी गलियों में घूमता था, मारे भी खाई, ये सब कुछ किया है। कमज़ोर बंदा था मैं, वाकई बोलता हूँ। इसको जो चाहता मुझे दबा लेता था। अच्छा, यहाँ तक के मतलब एक वाकया पता नहीं मुझे सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए कि जो शराफत से गुजारा करता है अल्लाह पाक उसकी मदद कैसी करता है। एक यादगार वाकया माजी का अर्ज करूं। एक बार मैं गालिबन उन दिनों दावत इस्लामी की शुरुआत थी, शहीद मस्जिद में होता था, तो मैं नमाज के लिए आ रहा हूँगा, तो कोई साइकिल पर गुजरा होगा, गालिबन साइकिल पर वो गुजरा और उसने मुझे देख कर मुल्ला, खैर मैं तो आ गया मस्जिद में। अब मैं इसका तजर्बा, मुझे तो तरह तरह के ताने हैं, कभी कंकर पत्थर भी खाने की सादत मिली है। और ये जैसे नौजवान बैठते हैं और ये जा रहा है मौलवी तो मारा कंकर, तो पिंडली भी एक बार शायद लगा था मुझे। तो खैर अब ये इनको यूँ कि मुल्ला भी कहो करेगा मजा आएगा, मैं कहा को इनको मजे लेने दूँ, बोला भाई नहीं, मुझे कुत्ता भाव भाव करे तो बच्चे बार बार पत्थर मारेंगे, तो बच्चों को मजा आएगा। खैर तो मैं तो चला गया, बात तो आई गई होगी, भूल भुलैया हो गई। एक बार एक मकाम पर कोई इज्तिमा या कुछ ऐसा था हिसाब किताब, तो मैं वहाँ गया, लोग जमा थे, तो एक नौजवान मेरे पास आया, वो बोला मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। क्या हो गया? तो बोला वो फिर वो माजी में ले गया, कुछ अर्सा पहले हुआ होगा, चंद माह या चंद हफ्तों पहले, उसने किस्सा सुनाया। बोला आप गुजर रहे थे तो मैंने आपको बोला था हे मुल्ला, तो मैंने उसको पकड़ाने का चतु ही था, तो फिर सुनता रहा उसकी। तो बोला कि मैंने फिर ये हुआ कि मैं बोलने को तो बोल दिया, और रात को जब मैं घर गया ना तो मैं सो नहीं सका रात को, वो आप नज़र आते रहे मुझे, ये उसके एक नफ्सियाती तौर पर मुझे नज़र आते रहे। मैं जैसे आंख बंद कर आप खड़े होते थे, आंख खोलो तो खड़े। अब मैं बोला इस तो मसला हो गया। फिर मैं सुबह निकल कर, रात तो सो नहीं पाया, मैंने मालूमात की कि इस तरह के आदमी को मैंने यूँ बोला था ना, ये इसने तो मुझे रात को सोने नहीं दिया, ये है कौन? अब इत्तेफाक से वो भी मुझे जानता होगा। बोला अब तो तू मरा, तू माफ़ी मांग क्या? तो ये बोला कि मैं, बोले कहाँ मिलेगा ये? तो बोला गुलजार हबीब में मिलेगा। गुलजार हबीब में जुमेरात को इज्तिमा होता है। तो वो बोला मैं आया इज्तिमा में, तो रश था वहाँ, तो पहुँच तो नहीं सकता था अब तक, मगर आप कुछ बयान कर रहे थे तो मैंने वो बयान सुना। बयान सुनकर मैं आ गया माहौल में, माहौल पे आ गया हूँ। शायद इमामा भी बांधा था उसने, और मैं माहौल में आ गया हूँ। आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। तो ये कि अगर मैं बदमाशी करता उसके साथ तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल उन दिनों भी नहीं था। मतलब किसी को इशारा करता तोड़ फोड़ देता, तोड़वा फोड़वाया नहीं है किसी को आज तक, और इंशाल्लाह नीयत भी नहीं है। तो ख्वाब पे अपने को जुड़वाना है सबको। तो ये भी ख्वाब पे जाकर क्या हुआ था? वो बेदारी में नहीं, वो बेदारी का कह रहा था, तो उसको ह्यूला नजर आ रहा होगा, नफ्सियाती तौर पर ले लिया होगा दिल पर कि यार ये इच्छा हो गया कि मेरे काय को बोला मुल्ला, और चिढ़ाया ना ये मुल्ला करके। तो खैर ये वो इस बहाने माहौल में आ गया बकौल उसके। उसने जो नाम बताया ना, अपना नाम के साथ जो मैं वो नाम स्क्रीन पर बता नहीं सकता कि वो किस तरह के खानदान का फर्द था,
सही बोलता हूँ, अकेले में इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नाम, वो बिल्कुल हैरत अंगेज, आपको हैरत होगी। अल्लाह अल्लाह, इतना मतलब है कि इस तरह के लोगों से मुंसलिक ख़ानदान का फ़र्द और ये माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शरीफ रहकर उन दिनों मेरा, जिन दिनों में दावत इस्लामी भी नहीं थी, मैंने बड़े ताने सुने। दाढ़ी रखी थी, लोग उन दिनों आमतौर पर दाढ़ी नहीं रखते थे, ओ मुल्ला, ओ मौलवी, ओ फुला, ओ बुरे लोगों से भी बातों का निस्बत देते थे। मैं सारा वो स्क्रीन पर बोल नहीं सकता, मैं जुल्फ़ें भी रखता था, इस पर भी फिल्म एक्टरों के नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बैठा हूँ। उस वक्त ज़ाहिर है कि मैं बदमाशी करने की ताकत भी नहीं थी, तो अगर मैं बिलफर्ज अगर मैं शरीफ की अगर मुझे टाइटल मिलता है, अगर मैं शरीफ था, काश मैं वाकई शरीफ होता, है, तो मैं मुकाबले की ताकत नहीं थी, और होती तो भी एक जहन बनता था, यार मेरा मजहबी जहन बहुत पुराना है, तो मैं आज आपके पास बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत दी है वो आपके सामने, बल्कि आपके सामने भी नहीं है, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है उसकी रहमत से। तो शरीफ रहकर आदमी जी सकता है। अब बोलो कि यार ये तो बड़ा आदमी है, तो सिक्योरिटी लगी हुई है, तो ये अगर ऐसी बात नहीं करता तो मैं अपनी शुरुआत की बातें करता हूँ जब सिक्योरिटी बोलना भी नहीं आता होगा मुझे, मैंने मारे भी खाई है, सब कुछ खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि शराफत का ज़माना था, है और रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और वाक़या भी तो था, बड़ा पता दिलचस्पी हो जाएगी। वो आप काम कर रहे थे और एक लड़के ने आकर, वो भी इसी तरह का था, पूरा इसे मैच हो जाएगा। काम कर रहा था तो वो एक लड़का खड़ा हुआ मेरे पास, ज्यादा बड़ा नहीं था लड़का, और मुझे मेरे पास खड़े होकर इसकी हिम्मत, उसने इसी तरह का कोई लक़ब बोला, वही मुल्ला। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने उसको देखा, खाली देखा, बस घूर के भी नहीं देखा, डराया भी नहीं, खाली देखा ही। ये मेरे देखने से खुदा जाने उस पर क्या रुआब पड़ा, ऐसा रुक पड़ा कि वो जैसे कि मैं नक्शा खींचूं अपने हिसाब से कि पहले तो 2 कदम पीछे हटा, फिर ये उछला कूदा और रेस लगा गया कि अब ये मुल्ला कहीं मुझे खा जाएगा, क्योंकि ये बोलता कुछ नहीं है। तो है ना, खामोशी का अपना रोग है। बुजुर्गों का मकूला मिलता है, कौल मिलता है कि खामोशी बगैर सल्तनत की हैबत है, तजर्बा शर्त है। अब बड़बड़ करोगे तो किसी से नहीं पूछोगे, और सब्र करोगे, हिम्मत रखोगे, शरीफ रहोगे तो सारे बदमाश आपके कदमों में होंगे। ये हमारे मुबल्लिगिन में एक से एक मिलेंगे, फन्ने खान, तुर्रम खान, कल तक इनके कारनामे होंगे, आज माशाअल्लाह ये आपको मुबल्लिग नजर आ रहे हैं। तो ये शराफत ही से ही होगा, बदमाशी से आप एक को भी नमाजी नहीं बना सकते, मिन्नत करके खुशामद करके हाथ जोड़कर ही आप मस्जिद में ला सकते हैं। तो शराफत का ज़माना है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप मदनी चैनल पर बराह रास्त बैत फरमाते हैं और सिलसिला आलिया कादरिया में मुरीदों को शामिल फरमाते हैं। तो हुजूर अर्ज़ है कि जिस तरह ख़त के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए तो समझ आता है कि आप बैत फरमाते हैं, आपकी बारगाह में नाम पेश किया जाता है कि फ़लाँ बंदा है तो आप उसको आप अपना मुरीद बना लें, लेकिन मदनी चैनल पर हुजूर आप किस तरह बैत फरमाते हैं? ना आपने उस शख्स को देखा, ना वो आपके सामने है, ना जिंदगी मुलाकात हुई, कैसे कई ऐसे हज़रात होते हैं। तो इस मामले में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ख़त के ज़रिए भी तो बैत का आप इकरार फरमा रहे कि होता है, तो ख़त में कहाँ बंदा नज़र आता है? इसकी भी क्या गारंटी कि जिसने लिखा है वो बैत होना चाहता है, किसी और ने झूठ मूठ लिख दिया हो, ये तो हो सकता है। फिर कैसे हो? आप बोलो सामने रूबरू हो, तो रूबरू भी जो बैत हो रहा है तो हो सकता है कि वो मुरुव्वत में हो रहा हो, किसी ने बोला हो जा, तो इसने पकड़ लिया और अल्फाज भी बोल दिया, दिल से ये मुरीद होना ना चाहता हो। तो यूँ तो मतलब ये कि वसवसों की दुनिया वसी है, जो उलमा फरमाए वो मान लेना चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बैत कर लेते थे,
इज्तिमाई तौर पर। अच्छा, अब क्या ये टेक्नोलॉजी नई है, ये स्क्रीन के ज़रिए, चैनल के ज़रिए, लेकिन आवाज़ तो पहुंच रही है, अगला तौबा भी कर रहा है, इकरार कर रहा है। तो असल बैत ये शादी से मिलता जुलता मामला है, इजाब व कबूल है। जैसे कि मैंने कहलवाया ना कि मुरीद होता हूँ मैं, ये कहो, तो उसने कहा मुरीद होता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये कि मैंने जो कहा ये कहलाएगा ईजाब, और उसने जो कहा ये हो जाएगा कबूल। तो ये हो गया ईजाब व कबूल, बैअत दुरुस्त हो गई। अब किसी बच्चे को बैअत आपने करवाया तो वो बच्चा तो कुछ भी नहीं बोलता, बाप करवा सकता ना बैत, उसकी इजाजत से हो गया। अब इसको तो पता ही नहीं कि मैं मुरीद हूं, तो बड़ा होगा तब पता चलेगा, वो भी अगर चलेगा तो चलेगा, लेकिन वो रूहानी कनेक्शन तो उसका कायम हो गया ना, रिश्ता तो कायम हो गया। यहां तक इसमें गुंजाइश है कि छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा, जैसे इसका बाप है ही नहीं दीन दुनिया के, उसमें उसको होश ही नहीं है, जैसे एक तादाद है बापों की, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन किसी ने उसको बैत करवा दिया, भाई ने करवा दिया, बहन ने करवा दिया, हालांकि बाप की इजाजत से बैत होता है, सरपरस्त की इजाजत से करवा दिया, वन साइड पीर ने कबूल कर दिया, मुरीद नहीं हुआ। लेकिन ये बच्चा जब बालिग होगा और अगर उसको पता है कि मेरा कोई ये मैं मुरीद हूं, और उसने कहा कि मैं फुला का मुरीद हूं, तो पीर पहले से कर चुका था, ये था ईजाब था, कबूल नहीं हुई थी। अब बालिग होने के बाद अगर इसको बैत को ये बाकी रखता है कि फुला मेरा पीर है, तो अब ये बैत दुरुस्त हो जाएगी। ये नाबालिग के लिए ये यहाँ तक गुंजाइश है। तो इसलिए मतलब ये कि स्क्रीन पर हमारे उलमा इसको बाकी रखते हैं कि ये भी तरीका दुरुस्त है बैत का। तो अपने वसवसों को मेरा ख्याल है ख़त्म करना चाहिए कि तौबा ही तो करना है, इसमें गौसबाग का दामन पकड़ने, तो ये सिलसिला है सारा रूहानियत पर, कोई हरज नहीं इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये आया, विरासत क्या होती है? जो वो जो इंतकाल के बाद जेब में पैसे होते हैं, या जो घर और जो अम्मी के पास पैसे जमा होते हैं? जब कोई फौत हो जाता है तो वो जो कुछ छोड़ता है, माल, पैसे हों, कपड़े हों, औजार हों, प्लाट हों, इमारत हो, जो भी हो, जो माल छोड़ता है, तो ये इसको विरासत कहते हैं, तरका कहते हैं। और जो इनके जो करीब जो होते हैं, अकरब, करीब तरीन रिश्तेदार, ये उनमें तकसीम होता है। बेटा भी रिश्तेदार है तो ये भी अकरब आएगा, करीब तरीन में, बेटी भी। फौत होने के बाद तकसीम होता है, इसका नाम विरासत बनेगा, तरका बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा जान जुम्मा बुला रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, या अली। पापा जानी मेरी बहन 3.5 साल की है और मेरी बहन ने इस रमजान को दूसरा रोजा रखा था और मेरी बहन ने पिछले रमजान को पहला रोजा रखा था। आप हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए दुआ फरमा दे। प्यारे पापा जान, आज मैंने पहला रोजा रखा है, मैं उसका सवाब आपको और मदनी चैनल की पूरी टीम को तोहफतन पेश करती हूँ। मैंने आज पहला रोजा रखा है। मेरे खुदाओ इश्क़े मुस्तफा, इल्मो अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। मेरी रब से है ये फरियाद, मेरे मुर्शिद रहे
जन्नती जन्नती हज़रत सिद्दीक भी जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े। नमाज में एक हाथ इस्तेमाल करना होता है। हमारे छोटे भाई बहन हमारे ऊपर आके बैठ जाते हैं, इससे हमारा दुपट्टा उतर जाता है। हमें दोनों हाथ से दुपट्टा सीधा करना पड़ता है। हम दोनों हाथ से दुपट्टा सीधा कर सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। दुपट्टा तो नमाज में ओढ़ते नहीं है ना, ये चादर हो बड़ी जो सारे बाल और जो भी है कान और ये सब छुपा ले, गर्दन सब छुपी हुई होनी चाहिए और इतनी पतली भी नहीं हो कि इससे ये बाल वगैरह चमकते हों। मोटी चादर हो, जैसे ये मेरी चादर है, ये पतली है, बाल चमक रहे इसमें, तो ये नमाज में नहीं चलेगी। और अब ये कि चादर उतर जाती है बार बार, इसका मतलब वो दुपट्टा है, तो ये दुपट्टा तो वैसे ही ना काफ़ी है, छोटा सा है। तो वो कि नमाज में दो हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका कहना यह था कि एक हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा भाई आके बैठ जाता है जिसकी वजह से दुपट्टा उतर जाता है। अच्छा, छोटे भाई का। अब ये कि एक हाथ से भी तो अमल कसीर तो मुमकिन है, इस तरह मतलब इन्हें करे कि इशारे से सेट कर ले। इस्लाही नमाज के लिए है तो उसकी तो इजाज़त हो कि दो हाथ वैसे भी अमले कसीर में हर सूरत में नहीं आते। जी जी हाँ, इस्लाही नमाज अगर ये कि इस तरह उतर गया है कि उसके बेसतरी हो रही है, यानी कि बाल वगैरह इसके जाहिर हो रहे हैं, कान जाहिर हो रहा है, तो ये 3 सुभान अल्लाह कहने से पहले पहले ये सारा ढक ले। तो अब इसमें 2 हाथ इस्तेमाल किए तो हर्ज नहीं है। अगर 3 सुभान अल्लाह की कदर या इससे ज़्यादा अगर ये सत्र खुला रह गया तो फिर अब ये देखना होगा ना कितना हिस्सा खुला है, फिर इसका मसला बनेगा। नहीं, जब अगर इतना हिस्सा खुला है कि जो नमाज में खुलने में नमाज नहीं टूटती, फिर तो 2 हाथ से दुरुस्त करने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। 2 हाथ असल में मुतलकन इस्तेमाल करना ये अमले कसीर में आता भी नहीं है। हाँ जी, लोग ये समझते हैं कि 2 हाथ इस्तेमाल होगा एक साथ तो हर सूरत में अमले कसीर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, तो इसको मतलब है कि दुरुस्त तो करने में हरज नहीं है, जबकि वो बस इसमें अमल कसीर की तारीफ ये है कि देखने वाला ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, या उसको ज़न्ने गालिब हो जाए कि ये नमाज में नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी से बात हो रही थी तो कोई मसला पर डिस्कस हुआ तो एक लफ्ज़ अदा हुआ था ज़न्ने गालिब, तो उन्होंने कहा कि ये ज़न्ने गालिब क्या होता है, ये ज़रा वजाहत करते हैं। कोशिश तो करता हूँ कि जहाँ ख्याल जम जाए, ज़न्ने गालिब के माना ये है, ये कई बार मैं कह रहा हूँ, ये ख्याल गालिब आ जाए, ख्याल आपका जम जाए, गालिब में भी कहीं और निकल जाएंगे, तो वो ख्याल जम जाए। लेकिन ये कि मैं ये कोशिश करता हूँ, दूसरे मुबल्लिगीन का पता नहीं है, वो कोशिश बहुत कम ही करते होंगे। ज़न्ने गालिब इतना ये ज़बान पर गालिब आ चुका है कि निकलता हम लोगों के मुंह से यही है जी। अवाम तो ज़रा नहीं समझती। इसको मज़ीद कैसे आप आसान करेंगे? ख्याल जम जाए, ये गालिब आ जाए, यानी कि ख्याल तो जम गया, यानी कि एक जम गया, वही ना गालिब आ गया, जम गया कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, ऐसा जैसे कोई मसला बयान हो रहा है कि जैसे आप फरमाते हैं कि अगर ज़न्ने गालिब आ जाए कि मैं बीमार हो जाऊंगा खाने पीने के हवाले से, या ये खाऊंगा तो बीमार हो जाए, यानी कि ये मतलब ये ऐसा हो जाएगा, भाई ये हो ही जाएगा। नहीं नहीं, हो ही जाएगा नहीं, वो फिर यकीन की बात है।
तो यकीन नहीं है, ख्याल जम गया, यानी बहुत ऐसा मतलब है कि ये हो जाएगा, ख्याल जम जाए, गालिबन आधे में शक, आधो आध ख्याल हो तो, आधे से ज्यादा हो तो जन्ने गालिब। स्विमिंग पूल में कहते मैं स्विमिंग पूल में गया तो मेरे मुंह में पानी चला गया, फिर किस तरह रोज़ा टूट जाएगा? कुल्ली कुल्ली में भी मुंह में पानी तो डालना पड़ता है, अगर हल्क से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट गया, और नाक में चढ़ा, दिमाग तक चढ़ गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। किस्तों पर चीज़ देना जायज़ है या नाजायज़ है? वैसे किस्तों पर देना जायज़ है, लेकिन इसमें आजकल गुनाहों की सूरतें हैं, किस्त अदा करने में थोड़ी देर कर दी, फिक्स डेट पर नहीं दी, तो फिर इसमें ये लोग बोल लेते हैं जुर्माना, ये सूद की सूरत है ना, माली जुर्माना। अब माली जुर्माना ये नाजायज़ है। ठीक, अगर किसी ने 19 लाख के 2 प्लॉट खरीदे जिसका अब तक कब्ज़ा भी नहीं मिला और 10 लाख तक रकम दे दी और ख़रीदी भी बेचने की नीयत से है, आया ज़कात अदा शुदा रकम पर होगी या प्लॉट की कुल मालियत पर? मकान पर कब्ज़ा नहीं किया, कोई भी चीज़ हो तो उस पर कब्ज़ा ना किया हो तो जब तक कब्ज़े में ना आए उस वक्त तक तो उसकी ज़कात देना वाजिब नहीं होती, लेकिन जब भी कब्ज़े में आ जाएगी तो फिर जितने भी साल गुज़रे हैं तमाम की ज़कात देना फिर उस पर ज़रूरी हो जाएगी। जो रकम है जो इनके ऊपर कर्ज़ बाकी है वो माइनस हो जाएगी, और कब्ज़ा नहीं मिला तो अभी ज़कात देना वाजिब नहीं है इनके ऊपर, लेकिन जब भी वो हासिल होंगे तो इनको जितनी भी ज़कात हर साल की बनेगी, 2-3 साल के बाद हासिल होते हैं, तो तमाम की ज़कात फिर हिसाब लगाकर देना पड़ेगी। इरफान भाई, पता है कल ना क्लास में क्या हुआ? हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अरे बात तो सुने, इतने मजे की बात है, सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी बात है? कल ना हम क्लास में बैठे हुए थे, आरिफ भाई चेयर पे बैठने लगे, सज्जाद भाई ने उनकी कुर्सी खींच ली जिससे वो धड़म से नीचे गिर गए। फिर क्या पूरी क्या जोर जोर से हंसने लगी। ओहो, तो ये बात है, और इस बात को बताने के लिए आप इतना एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन ये कितनी बुरी बात है ना, आप सबने मिलकर उनका मजाक उड़ाया। अरे भाई कौन सी बुरी बात, इस शरारत से पूरी क्लास हंसने लगी और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है, आपको पता है इससे उनकी कितनी दिल आजारी हुई होगी। अरे भाई कोई दिल आजारी नहीं होती, आप होते और ये सब देखते तो आपको ही बहुत मजा आता कि सब लोग कैसे खुश हो रहे थे। जवाद भाई, इस तरह का मजाक करने से उनको चोट भी लग सकती थी, और चोट लग जाती तो? अरे भाई कुछ नहीं होता यार, ये छोटा मोटा मजाक तो चलता ही है, और सभी लोग क्लास में कर रहे होते हैं। मजाक मजाक होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आप सबके करने से कोई बुराई अच्छाई थोड़ी ना बन जाती है। आप लोगों ने जो मजाक किया है उससे उनकी कितनी दिल आजारी हुई होगी, और आपको मालूम है दिल आजारी कितना बड़ा गुनाह है। अरे भैया दिल आजारी नहीं होती, बल्कि इससे तो सबको खुशी मिलती है, और इस तरह की एक्टिविटी क्लास में होनी चाहिए, वरना तो क्लास में सब बोर हो जाएंगे। जवाद भाई, हमारी शरारतों से किसी का दिल रुक जाता है, लेकिन कभी कभार हमें इस बात का पता नहीं चलता। अच्छा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें कोई बताता ना, बल्कि अब तो इन शरारतों से पूरी क्लास लुत्फानंदोज होती है, आपको लग रहा होगा। चले आए हम अमीर अहले सुन्नत से इस मसले का हल मालूम करते हैं। अल्लाह अकबर, ये भी होता है वैसे दोस्तों में, घरों में भी होता है इस तरह, क्लास में भी होता होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, और ज़ाहिर है कि इससे किसी को चोट भी लग सकती है, और फिर ये बच्चे जब क्लास में करते हैं तो ये कभी बड़ों पर भी ट्राई करते होंगे घरों में। अब कोई घर का फ़र्द है जिसका वज़न ज़्यादा है, उसके पीछे से कुर्सी हटाई तो वो जब गिरेगा उसको तकलीफ़, चोट। अगर कोई बूढ़ा गिरेगा, बूढ़े को हटा दिया, दादा जान नाना जान जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे, तो उनके नीचे से कुर्सी हटा ली और वो बैठे तो उनको जो चोट लगी तो हो सकता है उनकी जान भी चली जाए। कि बाज़ वक़्त ऐसी हड्डियाँ टूट जाती हैं कि ये बुज़ुर्ग जो होते हैं फिर उठ नहीं पाते, वो गए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, या चले गए, चल भी लिए तो फिर ये उम्र भर के लिए बेचारे माजूर। ये ऐसी शरारत है कि इसको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और जो भी गिरेगा, चलो वो बुज़ुर्ग नहीं है, कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो भी गया, लेकिन वो सबके सामने उसकी ज़रा कि शर्मिंदगी तो होगी ना उसको। अब आप बोलोगे वो भी हंसता था, तो वो आप हंसते थे एंजॉय में, वो हंसता था अपनी जेब मिटाने के लिए,
शर्म छुपाने के लिए, वरना अंदरूनी तौर पर तो वो तकलीफ इसको हुई होगी, चोट भी आई होगी, चोट का भी इजहार नहीं करेगा शर्म के मारे। तो ये ऐसी हरकतें, ऐसा मजाक करना जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, कि जिसने मुसलमान को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी। ईज़ा माने तकलीफ़, जिसने मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या मुर्शिदी, आज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, तो ये भी कुछ सवालात करना चाहेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा। या मुर्शिदी, ये बताइए कि शादी ब्याह में सिर्फ अब्बू की दावत है और अब्बू अपने साथ अपने छोटे बेटे को भी ले जाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? इस पर उर्फ तो है कि एक आध बच्चा साथ होता है तो इसको मायूब नहीं समझते। छोटा बच्चा हो, जवान बड़ा लगता हो, ये नहीं। जैसे 4, 5, 6 साल का बच्चा होता है तो वो चल जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा बाबा जानी, एक और बच्चा यहाँ पे मौजूद है, तो ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेगा। जी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद रायन रज़ा तारी है। माशाअल्लाह। या मुर्शिदी, क्या जन्नत में हम भाई बहन अब्बू अम्मी खानदान वाले साथ होंगे? हाँ, अल्लाह की रहमत से सब जन्नत में गए, सब साथ भी रहेंगे। इस जन्नत में गम नहीं है, जो ख्वाहिश होगी पूरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी बापा जानी, एक और बच्चा यहाँ पे मौजूद है, ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेगा। जी। मोहम्मद रेहान रज़ा, क्या कुरान मजीद की किताब, कुरान मजीद और हदीस के अलावा आपको कौन सी किताब ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बचपन से कह सकते हैं कि मसाइल की किताब पसंद थी। कुरान और हदीस से जो मसले निकले वही मसले होते हैं। कुरान और हदीस पसंद, इसमें तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरल मतलब किताबों की बात कर रहा हूँ, तो मसाइल इसमें लिखा हो मसला, ये पसंद। ये तो बहुत बाद में पता चला कि इल्म फ़िक़्ह अफजल है, तफसीर से भी, हाँ है ना, इल्म फ़िक़्ह अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये बताइए कि पेपर्स के वक्त जब हमारे इम्तहानात होते हैं तो हमारे दोस्त हमसे कॉपियाँ ले जाते हैं और कभी कभार तैयारी करने का भी कहते हैं, तैयारी करवाने का भी कभी कभार कहते हैं, तो कभी कभार हमारी खुद की तैयारी भी जैसे नहीं होती। तो ये बताइए कि हम किस तरह उन्हें मना करें, या इसके लिए हम उनसे झूठ बोल सकते हैं? झूठ तो बोलना गुनाह है। कह सकते हैं कि मैंने अभी अपनी तैयारी भी नहीं की, मुझे अपनी तैयारी करने में नहीं दे सकता टाइम, नाराज नहीं होना, माजरत चाहता हूँ। इस तरह नहीं कि क्या हर पीछे लग गए हो, मैं अपनी तैयारी करूँगा तुमको तैयारी करवाऊँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। इस तरह हो सकता है इसका दिल दुखे। नरमी से, प्यार से गुजारा कर लिया जाए। और अगर टाइम दे सकते हैं और वो इल्म भी अच्छा इल्म है, अल्लाह से करीब करने वाला इल्म है, तो बिल्कुल उसमें मदद करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। रमज़ान की रौनकें रमज़ान रमज़ान या रमज़ान या नफ़हत अर्रहमान रमज़ान या रमज़ान शहर जूद व गुफ़रान। जी नाज़रीन, ये चरागा के मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये किसी शादी या फिर कोई और मौके पर नहीं किए गए, बल्कि ये रमज़ान की खुशी में किया गया चरागा है। आइए अमीर अहले सुन्नत से रहनुमाई लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाएं कि रमज़ान की खुशी में चरागा करना कैसा है और क्या इसका सवाब मिलेगा, और ये भी इरशाद फरमा दें कि ये लाइट्स कब से कब तक ऑन रखी जाए। जज़ाकल्लाह। रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान।
ہمارے یہاں تو یہ باہر ملک کا معلوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی اس کا عرف نہیں ہے. مسجد کی روشنی کے تعلق سے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے. حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان میں مسجدوں کو رونق کر دی، روشنی کر دی، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے. باقی گھروں کو سجانے کا ابھی رواج تو ہے نہیں. اس کے بارے میں کیا مطلب کہہ سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. مدنی مذاکرہ. আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার একটি বিষয় জানার ছিল। দেখা যায় যারা রিক্সা চালক তারা বিভিন্ন যাত্রীর থেকে অনেক ধরনের ভাড়া আদায় করে থাকেন, যেখানে 20 টাকার ভাড়া সেখানে তারা 30 টাকা দাবি করেন। এখানে তিনটি প্রশ্ন হচ্ছে যে বাহনে ওঠার আগে ভাড়া জিজ্ঞাসা না করে ওঠাটা কেমন, মানুষের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়াটা কেমন, এবং যে ভাড়া আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করাটা ঠিক কিনা, এই বিষয়ে যদি কোনো সঠিক দিক নির্দেশনা দিতেন। 20 टका ये टाका शायद बोलते हैं, टका बोलते हैं, टाका बोलते हैं, तो इनका जो भी वो है ये बोलेंगे टका टाका जी, टाका टाका जी, ये लिखा हुआ इनको इस्लाह करनी चाहिए. अच्छा, ये इनका सिक्का है जैसा हमारा है रुपया. तो अब जहां 20 टका किराया तय है वहां मांग रहा कि 30 दे दो, देर बहुत लग गई, ट्रैफिक जाम थी, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये इस तरह के बहाने करते होते हैं. तो ये जायज़ नहीं है इस तरह के बहाने करना. जो फिक्स हुआ है वही किराया लेना पड़ेगा. जब बाद लोग कहते हैं कि आप अपने इंसाफ से दे देना, और तय नहीं करते, और फिर वो अड़ी करते हैं, जो भी दिया तो ये तो बहुत कम है, ज़्यादा दो, ये इंसाफ है कोई. तो इसलिए वैसे भी शरन जहाँ उजरत मुकर्रर है, लेना देना पता है कि ये लेगा, इसको पता है ये देगा, है ना, तो अंडरस्टूड है. तो बहरहाल ये कि यहाँ उजरत तय करना ये वाजिब है. तय किए बगैर, तय नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे. और अगर कह दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे कोई उजरत नहीं लूँगा, और अब तो मांग नहीं सकता ये, लेकिन आगे जाके बोलेगा साहब तो ये मांग नहीं सकता. बोला क्यों, आपसे क्या पैसे लेने थे, आप बैठ जाओ रक्षा में. तो ये तो बोल दिया था कि नहीं लूँगा, तो अब क्यों मांग रहा है, अब तो नहीं मांग सकता, ये गया बोल के. तो ये सब एहतियातें करनी है, अपनी रोज़ी को हलाल करें. तो देख कर रहे हैं आप, बोले 30 टका के बदले 60 टका, इससे अगर लेना चाहते तो तय कर ले, वो तय कर ले आपसे, कहा भाई 60 टका देगा, ठीक है. फिर बगैर जो तय हुआ वो, अब वो अपनी मर्जी से 60 के बदले 70 दे देता है, 80 दे देता है, 100 दे देता है, कोई बात नहीं. आपने मांगना नहीं है, इशारा भी नहीं करना कि कुछ साहब दे दो. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. मेरा नाम मोहम्मद हसन गाजी है. प्यारे मुर्शिदी, कहा जाता है कि पहने हुए कपड़ों पर जादू होता है, इसे किसी को नहीं दे सकते, तो जो कपड़े पुराने होते हैं उसका क्या किया जाए, क्या उसकी कोई सूरत है कि इसराफ ना हो, रहनुमाई फरमाए. पहने हुए कपड़े किसी को देने में तो कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है, उसका पहनना भी जायज़ है. सेकंड हैंड जिसको बोलते हैं कोई हर्ज नहीं है. पर सेकंड हैंड तो बहुत बड़ा बिजनेस है. डंडा बाजार तो किसने नाम नहीं सुना होगा, बड़े बड़े बाजार लगते हैं ओल्ड क्लॉथ के, पुराने कपड़ों के, पहने हुए कपड़ों के, स्वेटर, ये वो सर्दियों में तो बहुत चलते हैं. ये गरीब आदमी नया खरीद भी नहीं सकता, इतने महंगे होते हैं, पुराने में गुजारा हो जाता है. नहीं, अगर जादू तो वो अपनी जगह पर, जादू तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, बालों पर भी होता है. तो नाई के पास बाल कटवाएंगे,
नाइब बोलते हैं, आप पहले तो नाइब बोलते थे, आप क्या बोलते हैं? हेयर कटिंग सैलून पर आप बाल कटवाएंगे तो क्या करेंगे? बाल साथ ले जाएंगे? जादू तो उससे भी होता है, बहुत सारी चीजों पे जादू होता है ना। बाल कपड़ा भी जरूरी नहीं है, और भी सूरत नहीं जादू होने की। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। বাংলাদেশ চাঁদপুর থেকে গোলাম সাব্বির ভাই প্রশ্ন করেছেন, প্রিয় মুর্শিদ, আগুনে পুড়ে যদি কেউ মারা যায় তবে কি সে শহীদদের মর্যাদা পাবে? प्यारे अमीरुल सुन्नत, सवाल कुछ इस तरह है, क्या आग में जलकर फौत होने वाला शख्स भी शहीद की तरह है? शहीद है। সুবহানাল্লাহ। বাংলাদেশ ঢাকা থেকে এক ইসলামী ভাই আরও প্রশ্ন করেছেন, যদি আত্মীয়র সম্পর্কের মধ্যে যারা আছে তারা খারাপ ব্যবহার করে, তারপরেও কি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে হবে? प्यारे अमीरुल सुन्नत, सवाल कुछ इस तरह है, अगर रिश्तेदार झगड़ा फसाद करे तब भी रिश्ता कायम रखना होगा या नहीं? रिश्ता तो कायम रखना चाहिए जब तक कोई ईमान अकीदे की खराबी ना हो। क्योंकि अब थोड़ा मुंह मारी बात हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, तो उनके साथ हुस्ने सलूक करेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा सलूक करें। आप वो शरीफ के साथ शरीफ, बदमाश के साथ बदमाश, ये नारा नहीं लगाना है। शरीफ के साथ भी शरीफ, बदमाश के साथ भी शरीफ, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরও একজন SMS করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যে किसी ने सवाल किया है कि आपने बेटे को नेक और आलिम दिन कैसा बनाओ? नेक और आलिम दिन कैसे बनाएं? तो खुद नेक बन जाए, तो देख देख के बच्चा भी नेकियां करेगा। और इल्म दीन हासिल करने के लिए तो माशाअल्लाह अपने जामियातुल मदीना वगैरह है, तो जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूरी करें। पैसे नहीं लेते, फ्री पढ़ाते हैं, और जो भी शराइत हैं वो इसके मुताबिक वो दाखिला दिलवाएं। इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करेगा, अल्लाह चाहेगा तो आलिम भी बनेगा, रब चाहे तो मुफ्ती भी बन सकता है। तो कोशिश करने से होगा, चाहने से क्या होगा? अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, ये मुहावरा है अरबी का कि कोशिश मेरी तरफ से और पूरा अल्लाह पाक करेगा। আরেকজন প্রশ্ন করেছে, যদি নাম পরিবর্তন করি তবে কি আকিকা করতে হবে কি না? प्यारे अमीरुल सुन्नत, सवाल कुछ इस तरह है, अगर किसी ने अपना नाम तब्दील किया तो क्या दोबारा अकीका करना होगा? नहीं, अकीका एक ही बार है, मुस्तहब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खुश हो? सब खैर? वालेकुम सलाम। गर्मी जाम है तो वट पानी जो बंदोबस्त आए? पानी हो थोड़ी देर खत्म थी हो। ये आका की दुखियारी उम्मत है यारब, परेशानियां इनको घेरे हुए हैं। परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे, अॻे हिकिड़ो रस्ते ते खूह आहे, उते पंहिंजे पाण खे ऐं जानवरनि खे वञी पाणी पीआरे। सच तो चवां? बिल्कुलु सच चवां थो, तूं हलियो वञ खूह ते। हू मूंखे वाक़ई जानवर खे पाणी ॾींदा? हा अदा। हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर, हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर, रिजा वाली बस एक वो शाम मुझसे ले ले, रिजा वाली बस एक वो शाम मुझसे ले ले। हज़रत सैयदना महमूद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सुराक़ा बिन जोशम रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कोई गुमशुदा जानवर मेरे हौज़ पर आ जाए तो अगर मैं उसे पानी पिला दूं तो क्या इसमें मेरे लिए सवाब है? फरमाया, उसे पानी पिला दिया करो क्योंकि हर जानदार में सवाब है। आप भी इन नेकी के कामों में FGRF का साथ दीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबाजात, दीगर शोबाजात में FGRF भी है,
اور مطلقاً تمام ہی شعبہ جات میں دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے. تو ان دنوں میں عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ، فطرہ اور ڈونیشن یہ نکالتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ دعوت اسلامی کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جہاں ہیں، جو آپ کی جان پہچان ہے، اپنے ڈونیشن، زکوٰۃ، فطرہ دعوت اسلامی کو دے کر اس کام میں آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر ڈکار آ جائے اور اس سے حلق میں کھانے پینے کا کوئی ذائقہ محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں رحمت کا نزول فرمائے. ان کا سایہ اللہ ہم پر تعدیر و قاعدہ فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین. آپ نے جو سوال کیا تو ڈکار آنے سے یا ڈکار کی وجہ سے کھانے کا ذائقہ حلق میں محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوشل میڈیا پر سوال ہے، غلام مصطفیٰ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے برتن ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی روٹین میں یوز نہیں ہوتے، تو کیا وہ مکروہ ہو جاتے ہیں؟ مکروہ؟ جی کوئی نہیں. اگر اضافی برتن ہوتے ہیں یہ استعمال میں آتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے کوئی مطلب تو اس میں لوگ اس کو دیتے ہیں، اس کوئی حرج نہیں اس میں. ایک اور سوال ہے، عمیر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا عقیق پہننا یہ سنت ہے؟ عقیق پہننا ثابت ہے. عمران بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر کتنی مرتبہ آئے؟ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ عرصے میں 23 ایئرس کے اندر تقریباً 8,280 دن بنتے ہیں، یعنی 8,280. اور جبریل علیہ السلام کی 2400 بار یعنی 24,000 ٹائم حاضری اوسطاً میں ایوریج روزانہ ایوریج ڈیلی کی تقریباً 2 بار سے بھی زیادہ حاضریاں بنتی ہیں. پھر یہ کہ جبریل امین کس نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے، اس کے کچھ ہیں مطلب کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ یعنی 42 ٹائم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ 400، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم، اور اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2400 مرتبہ یعنی 24,000 مرتبہ یعنی 24,000 ٹائم حاضر ہوئے. وہ مولانا حسن اللہ نے ایک شعر ذہن میں گھوم رہا تھا، وہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سدرۃ المنتہا یہ حضرت جبریل امین کا مقام ہے جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے. تو سدرۃ المنتہا یہ بس انتہا ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں، جبریل امین بھی نہیں جا سکتا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی وراء الورا تشریف لے گئے، اس سے آگے تشریف لے گئے. تو جبریل امین بھی عاشق رسول ہیں، بارگاہ رسالت میں بار بار حاضری ہوتی رہی. اس کا بھی شعر سنا کہ محبوب کو دیکھے بغیر بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یعنی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر اگر کوئی چین آتا ہوتا نا تو یہ سدرۃ المنتہا سے بار بار آپ کے قدموں میں حاضری نہ دیتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا ہے.
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے شوہر کا گھر کے اندر رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ اگر شوہر اپنی بیوی کی بات مانتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو غلام ہو گیا. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. جائز باتیں تو ماننی ہے نا، اور مروت کی باتیں ہوتی ہیں اخلاقیات میں بھی ماننی ہوتی. اس میں مطلب جو کہتے ہیں وہ زن مرید بولتے ہیں، جو بیوی کی ہر بات میں اس کی اطاعت گزاری کرے، اس کو یہ بھی ایک ہے مطلب. لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے. اگر وہ عورت کا خیال رکھتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے عورت کو خیال رکھے، اس کو کھلائے پلائے، اچھا پہنائے اور اس کو راضی رکھے، خوش رکھے. اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا. اس کو اس طرح کہنا مطلب تو یہ غلط لوگ ہیں. یہ آپس میں کیا لڑیں کیا میاں بیوی تو یہ خوش ہوں گے؟ ایسا کہنا نہیں چاہیے. کہنے والوں کو اس سے بچنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسکول میں آم کا درخت ہے، اس پر کیڑیاں لگتی ہیں، ہوا کی وجہ سے کیڑیاں نیچے گر جاتی ہیں،
تو کیا بچے اسے گھر لے جا سکتے ہیں؟ یہ کسی کا پرائیویٹ ہے جگہ کیا ہے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے، اور اگر وہ اسکول سرکاری ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح تو نہیں ہوگا کہ جو چاہے اس طرح اٹھا کے لے جائے. وہ کس نے لگایا ہے، کس بنیاد پہ لگایا گیا، یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگی. تو سوال واضح نہیں ہے ان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان ارشاد فرما دیجئے کہ لوگ داڑیاں سہلاتے رہتے ہیں، تو یہ داڑیاں سہلانا کیسا؟ خاص طور کے نماز میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے داڑیاں سہلاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کی کچھ شرعی حکم ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. کپڑے یا داڑھی سے نماز میں کھیلنا، یہ سہلانا کھیلنا ہی کہلاتا ہے. یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، ناجائز گناہ ہے. ایسی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. غلام محمد کراچی سے. میرا باپا جان سے سوال ہے، میں موبائل یوز کرتے کرتے لیٹے ہوئے موبائل استعمال کر رہا تھا اور مدنی چینل میں نے جو ہے لائیو یوٹیوب پہ لگا دیا موبائل میں، اور مدنی مذاکرہ میں اس پر دیکھ رہا تھا. تقریباً 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں مدنی مذاکرہ، اور لیٹے ہوئے ہی دیکھ رہا تھا میں. تو میرے ذہن میں یہ سوال کریٹ ہوا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، لیٹے ہوئے مدنی چینل پہ کوئی بھی پروگرام دیکھنا، مدنی مذاکرہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی پروگرام دیکھنا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں میری رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. طبی طور پر نقصان دہ ہے. اسے لیٹے لیٹے کتاب پڑھنا بھی یعنی میڈیکلی طور پر نقصان دہ. آنکھیں اس سے کمزور ہوتی ہیں. کتاب کے مقابلے میں یہ اسکرین دیکھنا یہ زیادہ آنکھوں کو مطلب یہ کہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو لیٹے لیٹے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھوں کو نقصان پہنچے گا. البتہ لیٹے لیٹے دیکھنے میں شرعاً اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، تاہم بیٹھے بیٹھے دیکھیں زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آنکھوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے یہ کہہ سکتے تو بڑا بدقسمت ہے، تو یہ کفریہ تو نہیں ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کہنا تو بد قسمت ہے، یہ کفریہ نہیں. کفریہ کلمہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو بدقسمت کہنے سے اس کا دل دکھ سکتا ہے. اگر اس کو یعنی کہ نماز کی تلقین کی جائے، اس کو نیکی کی دعوت دی جائے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یوں اس طرح برا بھلا کہیں گے، یہ برا بھلا کہنا تو بدقسمت ہے، بد نصیب ہے، منحوس ہے. ظاہر ہے وہ کب نماز پڑھے گا؟ تو غصہ آئے گا، اس کو ضد بھی پیدا ہوگی اور دل بھی دکھے گا. تو بے نمازی کا دل دکھانا تھوڑی جائز ہے. دین تو حکمت سے پھیلانا، حکمت عملی سے، موعظہ حسنہ سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے. وہ آیت مبارکہ ہے نا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کے وقت میں جیسے گنتی ہوتی ہیں 1 2 3 4، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی گنتیاں ہوا کرتی تھیں؟ جی ہاں، 5 نمازیں فرض ہیں نا. گنتی تھی تو 5 کا پتہ چلا نا. رمضان کے روزوں کا 30 روزے، 29 30، یہ سب بہت ساری گنتیوں کا تذکرہ. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نماز میں. یہ سب گنتیاں تو تھیں الحمدللہ. میرا نام احمد رضا ہے اور میں کرنگی گرین سوسائٹی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنی امی ابو کا غصہ کیسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ غصہ دلانا ہی نہیں چاہیے. اگر ٹھنڈا کرانے کے لیے پریشانی ہو، اب غصہ آ ہی گیا تو ان کو دعا دے دیں. ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اپنا ٹھنڈا ہوتا ہے، خود کو غصہ آیا تو امی ابو کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو حج نصیب کرے، آپ کو مدینہ دکھائے، آپ کو بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے.
بہرحال لے کے غصہ دلانا نہیں چاہیے، یہ حل ہے اس کا. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے بھی وہ ٹھنڈے نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال آیا ہے، زہیب اتاری بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھیں گے تو کیا اس میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیں گے؟ آپ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کریں گے نا، مستحب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور اگر کوئی بیچ میں سے رکوع پڑھتے ہیں، کوئی اور آیتیں پڑھتے ہیں جو ابتدائی آیتیں نہیں ہیں بیچ کی، تو اس میں مستحب بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں مستحب نہیں ہے، جو آیتیں وغیرہ سورہ فاتحہ کے بعد ملاتے ہیں اس میں. اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کیا روزے کی حالت میں سر پر کلر لگا سکتے ہیں؟ جی، جیسے کہ وہ لال کلر لگایا بال سفید ہو گئے تو کوئی حرج نہیں لگانے میں، پیلا بھی لگا سکتے ہیں. عثمان اتاری بھائی سوال کر رہے ہیں کہ تہجد کی جماعت ہو رہی ہے اور کوئی پوری رات سویا نہیں ہے، تو کیا اس جماعت میں وہ صلاۃ اللیل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نفل کی نیت سے. ایک اور سوال آیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر موبائل نیٹ ورک جو کمپنی ہوتی ہے اس سے ایڈوانس بیلنس لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں ٹیکس وغیرہ بھی کاٹتے ہیں. لے سکتے ہیں. Today's question that I have in English, the first one is how to avoid infidel thoughts. سوال یہ ہے کہ کفریہ خیالات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کفریہ وسوسے، شیطانی وسوسے، اس کی طرف توجہ نہ دیں. لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس طرح علاج کریں اپنے وسوسوں کا. وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کا مطالعہ کرنے. انشاءاللہ اس سے بھی وسوسوں کے بارے میں معلومات ہوگی تو اللہ کرے گا تو کاٹ کرنے کا بھی ذہن بنے گا، اثر بھی ہوگا انشاءاللہ. اس کی طرف توجہ نہ دینا، وسوسے کی طرف توجہ نہ رکھنا، یہ بھی وسوسوں کی کاٹ ہے. شیطان کو لفٹ نہ کروائی جائے. Second question is that since I understand English better, can I pray in English instead of in Arabic? سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھا ہوا سوال موصول ہوا ہے چونکہ مجھے انگلش زیادہ سمجھ آتی ہے، تو کیا میں عربی میں نماز پڑھنے کے بجائے انگلش میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ عربی ہی میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی صورتیں پڑھنی ہوں گی. جب انگلش آپ کو آ سکتی ہے، سیکھنے سے ہی آتی ہے، عربی بھی سیکھنے سے آئے گی، سیکھنی چاہیے. ویسے بھی انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، دنیا بھر کی کروڑوں لاکھوں زبانیں ہوں، عربی زبان سب سے افضل ہے. ہمارے پیارے نبی کی زبان عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم بھی عربی میں، اور جنت میں بھی عربی زبان، قبر میں بھی عربی زبان میں سوالات ہوں گے نا. اور زبانوں کی روایتیں ہیں لیکن عربی زبان میں سوالات ہوں گے. تو خیر وہاں قبر میں عربی سب کو آ جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آتی اور پوچھا، آئے گی. اس طرح انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے آقا کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے، وہاں بھی عربی بولنا آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My question in the blessed quarter of Ahl Sunnat is, just like we're not allowed to say or call somebody by the name Ar-Rahman if their name is Abdul Rahman, also likewise for Islamic sisters, if they have the name Ar-Rahmana, is it permissible to keep this name? Jazakallah khaira. I'd like to request Ahl Sunnat that you make dua for my forgiveness, for the forgiveness of my parents and the whole Muslim Ummah. Jazakallah khaira. سوال کا خلاصہ یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جیسا کہ عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی رحمانہ نام ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی رحمانہ بلانا یا ایسا نام رکھنا جائز نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے. جی بالکل، یہ تو بہت سخت اس کے بارے میں احکام ہے کہ جو عبد الرحمن ہے اس کو رحمان بولنا. اللہ کی ذات
ہی کے لیے رحمان کہہ سکتے ہیں، کسی دوسرے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو عبد الرحمن ہی کہا جائے گا. اور اس کا مؤنث بنا کر رحمانہ نام رکھنا بھی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی ہم جو ہے وہ فیمیل نیم رکھیں اور کہہ دیں کہ یہ رحمانہ ہے. یہ حرام ہے اس طرح نام رکھنا. عبد الرحمانہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو کوئی اور نام ہی جو عورتوں کا ہوتا ہے وہی رکھا جائے گا، یہ رکھنا جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں. اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے پورے ماہ رمضان شریف کا، اور یہاں پر بہت سارے اسلامی میں موجود ہیں. چند ایک اسلامی میں آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہیں گے. فرحان علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات جہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو امام صاحبان مرحوم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل مرحوم کے کفن کو جنتی کفن کے ساتھ تبدیل فرما. تو جنت میں تو موت ہے نہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ امام صاحبان کی ایسی دعا کرنا کیسا، وضاحت فرما دیجئے. میرے والدین، میرے اساتذہ اور عزیز و اقارب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. جنتی کفن کا ہے نا، وہ تو حدیثوں میں بھی ہے کہ جنتی کفن لے کر فرشتے آئیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. علی عمران اتاری سیالکوٹ سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. پیارے امیر علیہ سنت، آپ سے سوال عرض ہے کہ دینی طالب علم کو رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ دینی طالب علم ہو یا دنیاوی طالب علم ہو، اگر وہ عاقل بالغ ہے تو روزہ تو اس پر فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے. نمازیں دونوں ہی طرح کے طلباء پر، ان کے امی ابو پر بھی فرض ہیں. 5 وقت ان کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں. تو ہر مسلمان کے لیے احکام ہیں کہ وہ ان پر جو بھی فرائض ہیں ان کو عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، سنتوں پر مستحبات پر بھی ذہن نصیب عمل کرے، اور گناہوں سے سبھی کو بچنا ہے. اس میں کسی کی رعایت تو ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی کا سوال خدمت امیر اہل سنت میں. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، یا پھر جہاں اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہو وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس میں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ علاقے میں بستی میں نا پورا ایک جی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. تو ایک بستی میں کسی ایک مسلمان نے اعتکاف کر لیا، وہ 10 دن کا جو آخری، تو سب پر سے سنت اتر گئی، اور کسی نے نہیں کیا تو سب سنت کے تارک کہلائے ہوئے. اب یہ کہ جیسا ماحول، جیسا موقع، اپنے علاقے کی مسجد میں ہی اگر مثلاً ایسا ماحول ہے کہ وہاں عبادت بھی دل لگا کر بندہ کر سکتا ہے، اور کچھ علم دین بھی سیکھ سکتا ہے، اور اچھا وقت گزرتا ہے، پھر دل بھی لگتا ہے، تو اپنے علاقے میں کر لے. اگر ایسا کوئی نہیں ہے کچھ ماحول، جہاں اچھا ماحول ملتا ہے وہاں کر لے. جیسے عالمی مدنی مرکز آپ کے سامنے کہ ملک بھر سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے بھی یہاں آتے ہیں، اور مقامات پر بھی الحمدللہ ماہانہ اعتکاف ہو رہے ہیں، 10 دن کے اعتکاف ہو رہے ہیں. تو یہاں ایک ماحول ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے. اور
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता है। अगर कोई बोले कि यहाँ इबादत का वक्त नहीं मिलता तो इसकी मालूमात की कमी है। ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं क्या है? तरावी के बाद से जो अब बैठे में क्या है? ये इबादत तो है, बल्कि ये तो इल्म दीन हासिल हम कर रहे हैं। वो बल्कि इल्म दीन हासिल करना तो अफजल इबादत है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से ज़्यादा है और तुम्हारे दीन की भलाई तक़वा और परहेज़गारी में है। हवाला मुअज्जमुल औसत जिल्द 3 पेज नंबर 92 हदीस नंबर 3960। और भी रिवायत है जिसमें ये बताया गया कि इल्म दीन की फजीलत इबादत से ज़्यादा है। बहरहाल ये कि इल्म दीन हासिल करना जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये अंडरस्टैंड कि इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, ये इसकी अपनी फजीलत है और ये अच्छा ही काम हम कर रहे हैं। दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ यानी छपी हुई 304 पेज की किताब बहार शरीअत हिस्सा 16 सफ़ा 272 पर है। घड़ी भर इल्म दीन के मसाइल में मुज़ाकरा और गुफ्तगू करना सारी रात इबादत करने से अफजल है। इसके अलावा यानी कि दुआ इफ्तार होती है, फिर यहाँ हल्के लगाए जाते हैं, इसमें भी कुछ न कुछ सिखाने की, कुरान करीम की भी सिखाने की तरकीब होती है इसके औकात में। तो यहाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहिए कि डबल 12 घंटे इबादत होती रहती है और ख़ुद इतिकाफ़ इबादत है। इसमें इबादत में इबादत, इबादत में इबादत ऐड होती जा रही है, जमा होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली अत्तारी ज़ैनुल आबिदीन। मैं कराची से हूँ, नेवल कॉलोनी से। माशाअल्लाह। कितने दिन की नियत की मदनी काफिले में सफ़र की? 3 दिन। चांद रात सफ़र कर रहे हैं इंशाअल्लाह सोचा। किस तरह आपका जहन बना मदनी काफिले के हवाले से? सही मानों में जो है बापा के करीब से दीदार से जो है खुसूसी जो बापा की बारे में हाजिरी होती है ना, सही मानों में वहीं से जहन बना। पापा कहते ही काफिला काफिला करते, काफिले वाले मेरे, तो पापा के इस लफ्ज़ों ने इंशाल्लाह आइंदा भी मैं 12 माह भी करूँगा और इंशाल्लाह चांद रात भी काफिला करूँगा। मिसम ने जो तरगीब दी तो कि आप 3 दिन का काफिला करें इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, मुर्शिद के कहने पर इंशाल्लाह हाजिर हूँ। कितने दिन के मदनी काफिला? 12 माह के काफिले। 12 माह के मदनी काफिले, माशाअल्लाह। पहले भी आए दावत इस्लामी में तरबियत कोर्स किया। हमारे साथ साहब पहले बोले थे कि नियत करें, इस नियत से हम लोग ने नाम अपना लिखवा दिया 12 माह। आपने नियत लिखवा दी? जी जी। अब एतिकाफ़ में आए यहाँ पे माशाल्लाह, इतना अच्छा माहौल है, फैज़ान मदीना का पैदान भी मिल रहा है और पापा की दुआ मिलेगी। अमीर अहले सुन्नत की दुआ हासिल करने के लिए आप मदनी काफिले में सफ़र करेंगे? जी, और मैंने एक मुट्ठी दाढ़ी की भी नियत करी है। क्या आपने इसका इंदराज करा दिया? इंदराज तो नहीं करवाया, नियत तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी नियत भी हम नोट कर लें, यानी लिख लें आपकी नियत, आए हमारी मजलिस के साथ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफ़र की नियत लिखवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कसीर इस्ताइब जब मदनी काफिले में सफ़र की नियत करते हैं तो यहाँ आकर अपने नियत का इंदराज करवाते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आप तो चाहते हैं कि हम चांद रात को 1 माह के मदनी काफिले में सफ़र की सादत हासिल करें और होना भी ये चाहिए, लेकिन चूँकि वालिदैन भी हैं, उनकी ज़ियारत भी करनी होती है और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले भी हैं और उनके साथ ईद की खुशियाँ भी शेयर करना चाहते हैं। तो क्या हम वालिदैन की ज़ियारत करें, घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं, या फिर हम 1 माह के मदनी काफिले में सफ़र करें? हमें क्या करना चाहिए? अमीर अहले सुन्नत हमें रहनुमाई इरशाद फरमा दें। वालिदैन को राज़ी करें, इजाज़त लेकर सफ़र करें। अगर माँ बाप नाराज़ होते हैं तो ज़ाहिर है कि माँ बाप को खुश करना अहम है। एक तादाद है माँ बाप की जो अपने बच्चों को मदनी काफिलों में भेजती है, वो चाहती है कि ये जाएं मदनी काफिले में। बेटे सुस्तियाँ करते हैं, ये कि हमारे यहाँ चांद रात को मदनी काफिले शुरू हो जाते हैं, रमज़ान शरीफ चांद रात को। ये एक अच्छा तरीक़ा है क्योंकि रमज़ान शरीफ में एहतिकाफ़ किया, इबादत की, बड़ा ज़हन बना
कि अब ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, दाढ़ी भी रखूँगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ही ईद का चांद नज़र आता है तो एक तादाद है जिनके दोस्त लेने आ जाते हैं। अब सबके दोस्त मजहबी तो होते नहीं हैं, वो दोस्त होते हैं तरह तरह के, तो वो हंसते बोलते खिलखिला कर उनको ले जाते होंगे। और फिर दाढ़ी बढ़ गई है तो बोलेंगे, या उसने इजहार किया कि मैंने दाढ़ी रख लिया, तो यार तू मुल्ला बन गया है, छोड़ यार, अब तो फलां तफरीगा में कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, वो कैसे होगा। यूं मतलब वो इसको बाद वक़्त खुटा देते होंगे। तो सोहबत तो रंग लाती है ना, बुरी सोहबत। तो इसलिए मतलब ये कि अगर आप आशिकान रसूल की सोहबत में निकल जाएंगे ना मदनी काफिले में, जबकि किसी का हक तलफ ना होता हो, इंशाअल्लाह ये कि जो एतिकाफ में आपने किया है ना नियतें वगैरह, उसको मज़ीद प्रोटेक्शन हासिल होगा, तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा इंशाअल्लाह। मज़ीद आपके अंदर वो पुख्तगी पैदा होगी, पक्कापन, इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएंगे आप। मेरा तो अनकस मशवरा है कि सब के सब मुतकिफ़ीन या जो गैर मुतकिफ़ीन है, इजाज़त उनको भी है, सब के सब चांद रात को मदनी काफिले में, वरना बाज़ारों के हालात इन दिनों भी नहीं ठीक होते। ईद की ख़रीदारियों में भी जो माहौल बन रहा होता है, जो बेपर्दगी होती है अलमान, तो इसी तरह चांद रात को भी चारों तरफ मतलब जहाँ जहाँ बाज़ारें हैं ट्रैफिक जाम होते हैं, बड़े रोड जो है हमारे यहाँ वो ट्रैफिक जाम। अब ईद की ख़रीदारी या वैसे सैर व तफरी के लिए सब ख़रीदारियाँ थोड़ी करते हैं, खाली सैर व तफरी ईद में। अब जिसकी जो नीयत, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं माअज़ल्लाह, पहले तो पहनाई, अब भी शायद होता ही होगा, चूड़ियाँ तो पहनाते होंगे, अब भी मर्द औरतों को पहना रहे होते हैं, ये गुनाह का काम कर रहे होते हैं। ये इस तरह के माहौल होते हैं बाज़ारों में। बाज़ार में तो ईद की रात तो ख़ासकर इंसान को बचना चाहिए, ऐसी गफलत भरी फ़ज़ाएँ होती हैं कि ऐसा ना हो कि आप रात को बाहर निकलें, बाज़ारों में निकलें और ये एतिकाफ़ की कमाई जो है आपकी वन शॉट जो है आगे पीछे हो जाए। तो इसलिए मदनी काफ़िले में ज़रूर सफ़र करें, नाम भी लिखवाएं, और ये जिस तरह फरमाते हैं एडवांस भी, क्योंकि ख़र्चा भी होता है ना इसमें मदनी काफ़िले में, वो एडवांस भी अगर वो बोलते हैं तो जमा करवाएं। एडवांस तो जमा करने पड़ते हैं, हम हर दावत इस्लामी के पैसों से थोड़ी काफ़िले में सबको सफ़र करवाएंगे। तो ये कि इस तरह आप तरकीब बनाएं, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। ज़रा आप सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं, ख़र्चा तो करते होंगे ना, और ईद के लिए भी अगर तफरी के लिए जाएंगे जो लोग, तो कोई मुफ्त बसें तो नहीं चलती, चलो भाई आओ ईद की खुशी में आपको हम, बल्कि वो तो टिकट भी ज़्यादा मांग लेंगे, ईदी दो ईदी दो ईदी दो, ये लगा होता है। चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, होटल में भी रेट बढ़ जाते होंगे, भाई ईद की खुशी है ईदी। तो इस तरह बहरा लेके मदनी काफिला मदनी काफिला मदनी काफिला, भाई ये समझो कि मैं मदनी काफिला वाला हूँ। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो चांद रात को मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाए, जबकि कोई मजबूरी ऐसी ना हो कि जिसको मजबूरी कहा जा सके। काश मैं भी मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाता, लेकिन ज़ाहिर है मेरे बस में नहीं है। आप हिम्मत करें, मेरी आंखें ठंडी करें, मेरा दिल खुश करें। जो मदनी काफिले में सफ़र करेगा चांद रात को या ईद के दिन को, जिस तरह ये हमारे इस्लामी भाइयों की तरकीब हो, तो या अल्लाह पाक जो चांद रात को रमज़ान शरीफ गुजरने के बाद जो चांद रात को या ईद के दिन मदनी काफिले का मुसाफिर बने, उसे मदीने का मुसाफिर बना दे, उसको हाजी बना दे, हज की शहादत दे दे, और अल्लाह पाक इससे हमेशा के लिए खुश हो जा, ईमान पर उसके इस्तिकामत की मोहर लगा दे, आमीन। और जो मेरी मदनी बेटी अपने किसी महरम पर कोशिश करके उसको मदनी काफिले का मुसाफिर बना दे, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा, आमीन। बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान
वसल्लिम रमदान ली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर हो, मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकिरा मदनी मुज़ाकिरा मदनी मुज़ाकिरा मदनी मुज़ाकिरा